Assalamu alaikum guys. So today we'll be starting off with Unit 5, which is all about finances. Uska topic 1 is business finance needs and sources. The need for business finance. Why do we need finance? कौन-कौन से purpose होते हैं? Startup capital, capital for expansion, working capital, and understand the difference between short term and long term finance. कौन से finances short term के लिए available होते हैं, कौन से long term के लिए, and the main sources of finance. जिसमें further division होगी. So what exactly is finance? It's defined as the management of money includes activities like investing, borrowing, lending, budgeting, saving, forecasting. यानी इसमें सारी वो activities आ जाएंगी that concerns money, right? Three types of finances जो आपके पर्सनल लेवल पे होते हैं, दैट्स पर्सनल फाइनेंस. जो बिजनेस लेवल पे ऑपरेट किए जाते हैं, यानी बिजनेस एक्सपेंडिचर्स, बिजनेस इनकम्स, दैट्स योर कॉर्पोरेट फाइनेंस. एंड देन द मैक्रो स्केल जिसपे हम पब्लिक या गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिसमें टैक्स फैक्स आ जाता है. ठीक है. वाई डू वी नीड फाइनेंस? सबसे पहली चीज़ तो ये कि टू स्टार्ट अ बिजनेस. ठीक है, जिसे हम स्टार्टअप कैपिटल भी कहते हैं. इनिशियल कैपिटल यूज्ड इन द बिजनेस टू बाय फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स बिफोर इट कैन स्टार्ट ट्रेडिंग. So you need some assets before you start off trading. ठीक है, उसके लिए जब आप business setup करते हैं, उससे पहले आपको invest करना पड़ता है, and that's where you need finance. Then working capital, finance needed by business to pay its day-to-day running expenses. जो भी आपके day-to-day operations होते हैं, उससे जो भी expenses bear करने होते हैं, you need finances to pay them off, right? ताकि आपका business working में रहे. So we have two types of expenditures. One is capital nature. The other one is revenue nature. Capital nature के जो expenditures होते हैं, basically investment on big assets होते हैं. Plant and machinery, factory buildings, IT systems. यानी जो एक तो उनकी amount ज़्यादा होती है. These are less frequent, and what else? These are known as capital expenditures. Whereas revenue expenditures जो होते हैं वो आपके day to day operations को run करने के लिए होते हैं. For example, raw materials, अब देखो ये frequent ज़्यादा होते हैं, इनकी cost इतनी ज़्यादा नहीं होती, and you have to pay in order to run the businesses. Energy cost, wages and salaries, marketing cost, यानी वो expenses होंगे जो day to day basis पे depend करते हैं. और capital expenditures आपके बड़ी investment को कहते हैं, investment in big assets. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको क्या बताता है? यू कैन आइदर जनरेट फ्रॉम विद इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इंटरनल बोलते हैं, और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं. वी विल डाइसेक्ट दीज टू. इंटरनल में कौन कौन से आते हैं और एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं. सो इंटरनल सोर्सेज कौन से होंगे? रेज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो बिजनेस खुद जनरेट करेगी फाइनेंस, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. हाउएवर जो बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रेज करेगी, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज सम एक्सटर्नल पार्टी इज गिविंग यू फाइनेंस. ठीक है. तो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. उसमें सबसे पहली चीज है रिटेन्ड प्रॉफिट्स. What is retained profit? वैसे it's the most important and significant source of finance for an established profitable business. Profit एक तो होता है you earn the profit. ठीक है जी. उस प्रॉफिट को फिर आप थोड़ा बहुत डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी को दे दिए, फिर टैक्स में चला गया थोड़ा बहुत प्रॉफिट. Whatever is left over with you, whatever is left with you, जिसे हम कहते हैं रिटेन कितना रखा है, अपने पास कितना रखा है, that is retained profit. So because the company generates the profits on its own, therefore retained profit जो होता है, it is an internal source of finance. So profit kept in the business after owners have been given their share of profit and after all the taxes have been paid, firms can invest this profit back in the business, and that's why it's known as retained profit, क्योंकि ये आपके पास रहता है. Benefits क्या है इसके? Cheap है, though not free. Obviously you need to run your business efficiently in order to get profits. Profits होगा तो retained profits होंगे. So cost of capital of retained profit is the opportunity cost for shareholders. यानी ये इसका क्या मतलब है? जितना ज्यादा आप रिटेन करेंगे, उतना कम आप अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे रहे होंगे. ठीक है. द मोर यू पे आउट एज डिविडेंड्स, द लेस रिटेन प्रॉफिट यू हैव. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. चीप है यानी एक तो ये कि आपने पे बैक नहीं करना किसी को भी, बिकॉज इट्स योर ओन मनी. फ्लेक्सिबल है, दे कैन कंट्रोल हाउ दे आर री इन्वेस्टेड, कहाँ पे री इन्वेस्ट करना है, एंड डू नॉट डाइल्यूट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी. यानी इसमें किसी को आपने ओनरशिप नहीं देनी, किसी यू आर नॉट लाइबल टू एनीवन, राइट. But however, drawbacks can danger of holding cash. If you retain a lot of profit and it's useless, फिर उसका फायदा नहीं होगा. Shareholders may prefer dividends if the business is not earning a sufficient return on capital employed. Share again we discussed कि यार ये है एक trade off. या तो आप shareholders को पैसे ज़्यादा दें, and that's
वन वे इन विच यू कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, या फिर आप रिटेन ज़्यादा करें। तो अगर आप रिटेन ज़्यादा करते हैं तो फिर शेयर होल्डर्स माइट बी पुट ऑफ कि यार हमें डिविडेंड ज़्यादा नहीं मिलते, लेट्स इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनी। देन हाई प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज वुड सजेस्ट द बिजनेस कुड अफोर्ड डेट। इसका मतलब है अगर ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, नाउ दिस इज अ बेनिफिट एज वेल, यू कैन इजीली ऑब्टेन लोन एज वेल if you have high profits. However, अगर आपके पास profits ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा लोन भी ले सकते हैं, and that might cause problems for your business. Then internal source of finance number 2 is sale of assets. कौन से assets जो excessive होंगे, जो आप आपके पास spare पड़े हुए होंगे, जो अब आपको चाहिए नहीं होंगे. So companies can sell assets they no longer need. इसको भी internal क्यों बोलते हैं? Because ये आप ही का कोई asset है जिसको आप sell करके आप you are trying to generate finance. For example, a company owns two cars worth 10,000 each, टोटल 20,000 हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, एक को लिक्विडेट करते हैं, एक को सेल करते हैं, एंड यू कैन गेट कैश फ्लो ऑफ 10,000। तो एक गाड़ी रखें, एक एक्सेसिव थी तो आपने सेल ऑफ एसेट करके पैसे कमा लिए, ठीक है। सेल ऑफ एसेट्स बेनिफिट्स क्या है, सेव स्पेस एज ओल्ड एसेट्स आर नो लॉन्गर देयर, तो आपकी स्पेस भी सेव हो जाती है, एंड इट मेक्स बेटर यूज ऑफ द बिजनेस कैपिटल। हाउएवर अगर वो गाड़ी जो यूजलेस है वो खड़ी रहती, इसका मतलब योर पैसा इज टाइड अप, at least you sold it off and you can use that cash somewhere else. However, drawbacks क्या है, न्यू बिजनेसेस के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि उनके तो सारे एसेट्स नए होते हैं, ठीक है, एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग इन द बिजनेस माइट नॉट फाइंड अ बाय, क्योंकि यूजली ये पुराने एसेट्स होते हैं और इसकी जो वर्थ होती है वो भी कम होती है। देन सेल ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ स्टॉक क्या है, स्टॉक होता है इन्वेंट्री आपकी, गुड्स जो जिस चीज़ का बिजनेस होता है फॉर रीसेल पर्पज। फॉर एग्जांपल बुक शॉप के लिए बुक्स, कार शोरूम के लिए कार्स, ठीक है। तो आप जब अपनी इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो ऑब्वियसली जो, क्योंकि दिस इट्स योर ओन इन्वेंट्री, आप इसको जब सेल करेंगे तो यू आर जनरेटिंग फाइनेंस योर सेल्फ। Therefore, sale of stock, sale of goods is also an internal source of finance. Now, benefit क्या है? Quick way of raising finance. You sell off your inventory and you can get money quickly. And by selling off stock, it reduces the costs associated with holding the item. यानी अगर आपके पास इन्वेंट्री पड़ी रहेगी तो यू हैव टू पे द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ देम, उनको सेफ भी रखना है, अगर कोई एडिबल आइटम है तो उसको आपने फिर फ्रीज भी करना है, ये सारी कॉस्ट एसोसिएटेड ये खत्म हो जाती हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, बिजनेस विल हैव टू टेक अ रिड्यूस प्राइस फॉर द स्टॉक, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टॉक नहीं बिक रहा तो यू माइट हैव टू ऑफर प्रमोशनल प्राइसिंग या डिस्काउंट्स ताकि यू गेट रिड ऑफ योर स्टॉक एंड गेट मनी, ठीक है। एंड देन ओनर्स ओन इन्वेस्टमेंट, जो ओनर ऑफ द बिजनेस होगा या होंगे, डिपेंड्स, if they invest something in the business, अगर वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, that's also internal source because वो उसी का business है and they are generating finance themselves, maybe in the form of startup capital या maybe in the form of additional capital. This is a long term source of finance. एक तो ये कि doesn't have to be repaid, ये सारे internal sources का benefit है और इस पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं है क्योंकि आपने, दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी। हाउएवर ड्रॉबैक क्या है कि दिस इज समवॉट लिमिटेड, ओनर के पास भी लिमिट होती है कि हाउ मच दे कैन इन्वेस्ट, इसमें इतनी लार्ज सम्स ऑफ मनी आप जनरेट नहीं कर सकते। देन कम्स एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड द बिजनेस। सबसे पहला है इशू ऑफ शेयर्स, जो आपकी कंपनीज होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज तो जनरल पब्लिक को इशू कर सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी इशू कर सकती हैं बट ओनली टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। सो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल विच डज नॉट नीड टू बी रीपेड टू द शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये आप उनको इक्विटी ओनरशिप दे रहे होते हैं, यू डोंट हैव टू रीपे दिस अमाउंट एंड नो इंटरेस्ट इज पेड। हाउएवर जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो जो शेयर होल्डर बन जाते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी, यू हैव टू गिव देम डिविडेंड्स, और जितने ज्यादा डिविडेंड देंगे उतना रिटेन प्रॉफिट आपके पास कम रहेगा। नंबर 2, डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल ड्यू टू द न्यू ओनर्स, जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप कम होती रहेगी, राइट। सो इफ आई हैव 10 शेयर होल्डर्स और मैं 5 और शेयर्स बेच देता हूँ टू द न्यू मेंबर्स, तो नाउ आई हैव 15 न्यू, सॉरी 15 टोटल शेयर होल्डर्स, राइट। इससे हर एक की जो ओनरशिप है दैट माइट बी अफेक्टेड एज वेल, दैट्स व्हाट इट मींस व्हेन वी कॉल डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। बैंक लोन्स एक्सटर्नल क्यों है, पहले तो ये समझे, क्योंकि बैंक इज नॉट योर ओन एंटिटी, बैंक है एक्सटर्नल, एक थर्ड पार्टी है। सो मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक दैट इज रिटर्न विद इंटरेस्ट। अब ये है कि जी आप लार्ज सम ऑफ मनी अरेंज कर सकते हैं, दैट्स बेनिफिट, आप क्विकली अरेंज कर सकते हैं, कैन बी फॉर वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम, आपको मीडियम टर्म चाहिए लॉन्ग टर्म चाहिए, किस टाइप का फाइनेंस चाहिए, ठीक है। एंड लार्ज कंपनीज कैन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि क्योंकि वहाँ पे रिस्क ऑफ रीपेमेंट कम होता है, तो बैंक्स जो होते हैं स्पेशली लार्ज कंपनीज को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दे देते हैं, दैट्स द बेनिफिट। हाउएवर ड्रॉबैक्स क्या हैं जी, रीपे आपने जरूर करना है, इट्स अ लाइबिलिटी,
interest must be paid, and sometimes you also have to keep a security or collateral with the bank in case you are unable to pay back the loan. वो आपकी ये फिर assets को जो भी security रखवाते हैं आप collateral, they can confiscate that. तो यहाँ पे ये drawback हो जाता है. Then comes debentures. Debentures is also a long-term liability जो and this is only available to public limited companies. जो डिबेंचर होते हैं वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इशू कर सकती हैं. बेसिकली होता क्या है, कंपनी इफ कंपनी नीड्स अ लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक तो वो एक डिबेंचर इशू करती हैं. ठीक है जी, लेट से मैंने 10 लोगों से 10 जनरल पब्लिक के लोगों से मैंने डिबेंचर यानी लोन लिया है. सो आई विल गिव देम अ डिबेंचर, इट्स अ पीस ऑफ पेपर, यानी वो मेरी लाइबिलिटी है. अब आई हैव टू पे देम इंटरेस्ट, क्योंकि लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट होता है, लोन पे इंटरेस्ट होता है. फायदा क्या है जी, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस इससे जनरेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जनरेट कर सकते हैं. बट बिकॉज दिस इज अ लोन, एक तो आपको पे बैक भी करना है, दूसरा आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी है. एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट यू माइट हैव टू सेल योर एसेट्स इन ऑर्डर टू फुलफिल या पे बैक द लोन. ठीक है, तो ये डिबेंचर्स आर ओनली अवेलेबल फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. देन कम्स फैक्टरिंग ऑफ डेट्स. इसको भी एक्सटर्नल कहते हैं क्योंकि इसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, विच इज डेट फैक्टर. एक बिजनेस मॉडल है डेट फैक्टर. So debt factors are specialist agencies that buy the debts of firms for immediate cash. इसका मतलब क्या है? They may offer 90% of the value of an existing debt and collect it from the debtor from the full amount, hence making a profit. So let's try to explain this. Let's say जी अलीना, मैं और मुर्तज़ा, यहाँ हम 3 पार्टीज हैं. ठीक है, I have taken a loan of 5,000 from Alina. ठीक है, अब मैंने कितना पे करना है अलीना को? 5,000. नाउ लेट्स से अलीना नीड्स द मनी क्विकर देन द एग्रीमेंट. ठीक है जी, उनको पैसे जल्दी चाहिए. शी इज आस्किंग मी कि मुझे 5,000 वापस कर दें. एंड इफ आई एम अनएबल टू डू दैट एट द मोमेंट, मैं कहूँगा अभी तो आई कैन नॉट डू. तो लेट्स से एक थर्ड पार्टी है जिसे हम मुर्तज़ा कह रहे हैं, डेट फैक्टर जिसे हम कहते हैं. मुर्तज़ा क्या करेगा? मुर्तज़ा कहेगा ओके अलीना, आई विल गिव यू 90% या 80% या 95%, जो भी एग्रीमेंट आपकी और मुर्तज़ा की और अलीना की होती है. मुर्तज़ा ये कहेगा कि अभी आप मुझसे 4500 ले लो अलीना, ठीक है, और दैट्स इट. आपका काम, अलीना को बेनिफिट क्या हो रहा है? शी इज गेटिंग द मनी वेरी सून. हाउएवर शी इज लूजिंग 10% ऑफ द मनी, बट शी इज गेटिंग 90%. तो वो कहेगी अच्छा यार चलो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है बट इट्स फाइन, एटलीस्ट आई एम गेटिंग 90%. एंड नाउ मुर्तज़ा क्या कहेगा जी? मुर्तज़ा कहेगा जी आप 4500 मुझसे लो अभी, आपका काम खत्म. अब मुर्तज़ा जो है वो मुझसे पूरा 5000 रिकवर करता रहेगा. तो ये जो 500 का मार्जिन है ना मुर्तज़ा के लिए, वो इज अ डेट फैक्टर, ये उसका प्रॉफिट है बेसिकली. सो बेसिकली डेट फैक्टर करता क्या कि वो मुझसे मेरा डेट बाय करके मेरी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देगा 90%, और फिर मुझसे वो रिकवर करता रहेगा पूरा 100%. ठीक है, सो इसमें फ़ायदा क्या है? फॉर अलीना, इमीडिएट कैश उनको मिल जाएगा. एंड रिस्क ऑफ कलेक्टिंग द डेट इज नो लॉन्गर लीनाज. अब उनको ये नहीं वरी करना कि मैंने रिसीव करने हैं इससे पैसे. अब ये काम है डेट फैक्टर का. तो डेट फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो मुझसे कैसे भी पैसे रिकवर करता है. हाउएवर इन्हें को नुकसान क्या है कि शी डजंट रिसीव 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स डेट. 90% मिल जाएगा, मे बी 85%, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट, राइट. सो ये काम होता है डेट फैक्टर का. एक्सटर्नल पार्टी है, वी आर कॉलिंग इट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. Then grants and subsidies from outside agencies could be government या could be non-profit organizations जो आपको ये grants financial aid को कहते हैं, funds. ठीक है, they do not have to be repaid और ये आपके use in the business के लिए होता है. However ये conditions के साथ ज़्यादा apply होता है कि if you do certain things then we will be able to give you grants or maybe a subsidy. ठीक है, अगर आप यहाँ इस लोकेशन में लोकेट करते हैं तो so that you can generate employment, infrastructure develop हो जाएगा. तो ये conditions होती हैं इसकी. Then comes micro financing. What is micro financing? देखो सबके लिए ट्रेडिशनल बैंक्स सबके लिए नहीं ऑफर करते लोन्स. तो ये जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर होता है आपका, ये बेसिकली उन लोगों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है जो इतने वेल ऑफ नहीं होते, यानी उनको वो छोटी अमाउंट्स देता है, मे बी 100,000, मे बी 300,000, नॉट मोर देन दैट, और जस्ट टू गेट देम स्टार्टेड कि यार कोई बिजनेस छोटा मोटा वो सेटअप कर लें. तो माइक्रो फाइनेंसिंग स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स दोज पीपल जो ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं हासिल कर सकते. सो इफ योर कंपनी इज वेरी स्मॉल यू माइट बी गेटिंग माइक्रो फाइनेंस. ठीक है, अगेन ये होती थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो जो आपको छोटे लोन्स प्रोवाइड करता है. ठीक है जी, फ़ायदा क्या है जी? उन लोगों को लिए भी एक्सेसिबल है फाइनेंस जो ट्रेडिशनल बैंक्स पे नहीं जा सकते. हाउएवर
क्योंकि एक लाइबिलिटी है, इट हैज़ टू बी पेड बैक, इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है जी। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन लो होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू वोंट बी चार्जिंग दैट मच हाई इंटरेस्ट। अगर आप उनको 100,000 देते हैं एज अ लोन, उस पर इंटरेस्ट भी लगा लें तो इट्स नॉट दैट मच। यहाँ पे द माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस करते हैं, दे प्ले ऑन क्वांटिटी, यानी वो बहुत ज़्यादा लोगों को फिर हु आर नीडी उनको लोन देते हैं, और दे प्ले ऑन क्वांटिटी। अनलाइक ट्रेडिशनल बैंक्स, वो तो ज़्यादा अमाउंट्स के लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी उनको हैंडसम मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप जो ये माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ज़्यादा लोगों को टारगेट करते हैं, सो दैट उनके कलेक्टिव अमाउंट एक हैंडसम अमाउंट बन जाए। एंड दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, स्पेशली इन पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, ठीक है। अगेन एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एक थर्ड पार्टी से आप जनरेट कर रहे हैं। देन क्राउड फंडिंग ये होती है कि इफ़ यू हैव टू स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस है आपके पास, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, कैपिटल जनरेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों से, छोटी छोटी अमाउंट्स विच आर अफोर्डेबल बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। तो यू आर जस्ट गेटिंग मनी फ्रॉम वेरियस पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों से, बट छोटी छोटी अमाउंट से। जो जितना पूलिंग करेगा उसको उतना रिटर्न भी मिल जाएगा। देन ये थे सारे एक्सटर्नल, क्योंकि इसमें आप एक्सटर्नल पार्टी से पैसे ले रहे थे। देन लॉन्जिविटी में इफ यू कंसीडर दैट वी हैव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म कौन से होंगे, जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए होंगे एंड 1 to 3 years के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसमें कौन से आ जाते हैं, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, it's arranged by the bank. Overdraft is if I have 100,000 in the bank account and I want to withdraw 110,000 या 105,000, यानी over and above what I have in my bank account. तो बैंक मुझे फैसिलिटी देगा कि जो भी एक्सेस में मैं मांग रहा हूँ, लेट्स से $10,000 इस केस में, कहेगा अच्छा जी टेक दिस एज अ लोन, एज एन ओवरड्राफ्ट। हम आपके बैंक का अकाउंट का जो फिगर है ना उसको -10,000 कर देते हैं एंड वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन यू, ठीक है जी। होता है ये शॉर्ट टर्म इससे क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो दैट्स द ड्रॉबैक, राइट। रिस्क ज़्यादा होता है इसीलिए इस पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपने पे बैक जल्दी करना होता है, ये ड्रॉबैक है। हाउएवर बेनिफिट क्या है, आप इजीली ओवर विड्रॉ कर सकते हैं या ओवर ड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। यू कैन गेट मोर फाइनेंस जितना आपको ज़रूरत है, फिर आप यही एक्सपेंस पे ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो पे ऑफ कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, या जिसको भी पे ऑफ करना है आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है क्योंकि यू कैन अरेंज एन ओवरड्राफ्ट एवरी मंथ, डिपेंडिंग कि आप ओवरड्राफ्ट की रीपेमेंट भी कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए एक वाइबल ऑप्शन बन जाती है। इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन द अमाउंट ओवर ड्रॉन, यानी जो 10,000 एक्सेस में था सिर्फ उस पर इंटरेस्ट है, सब पे नहीं इंटरेस्ट। एंड दिस कैन बी चीपर देन लोन्स इफ, क्योंकि देखो इसमें अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं मिलती आपको ओवरड्रॉ की, देयरफॉर आपको जो भी इंटरेस्ट होगा वो छोटी अमाउंट पे लग रहा होगा, देयरफॉर इट्स चीपर देन अ लोन। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है जी, व्हेन यू बाय एंड सेल ऑन क्रेडिट। एग्जांपल, इफ आई बाय गुड्स ऑन यू फ्रॉम क्रेडिट, यानी मैंने गुड्स खरीद लिए बट आपको मैं पेमेंट बाद में करूंगा। शॉर्ट टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इट हैज़ टू बी विद इन 30 days और मे बी 60 days मैक्स। आप ये तो नहीं कहेंगे 3 साल बाद मुझे पे करना, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स शॉर्ट टर्म। सो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, आपको सिर्फ बेनिफिट ये होता है यू कैन गेट द गुड्स and you can receive the money later. But obviously इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, सप्लाई may refuse to give discounts or even refuse to supply अगर आप पेमेंट विद इन टाइम नहीं करते। सो वंस और ट्वाइस में भी वो कहेगा अच्छा यार इन्होंने जो है लिमिट एक्सीड कर दी, जो डेडलाइन थी उससे ज़्यादा चले गए, सो नेक्स्ट टाइम आई वोंट बी गिविंग हिम एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। देन लॉन्ग टर्म कौन से होंगे, जो ओवर 3 years होते हैं, ठीक है। अब उसमें बैंक लोन्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, बैंक लोन्स प्राइमरीली आपके कार फाइनेंस के लिए काम आते हैं या आपके मोर्गेज के लिए काम आते हैं, तो ये सारे लोन्स 5, 10, 15, 20 years के लिए अवेलेबल होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हायर परचेज, व्हाट इज हायर परचेज, अब ये भी लॉन्ग टर्म है। allows a business to buy a fixed asset over a long period of time with monthly payments which include an interest charge, जो जिसको हम लीज कहते हैं ना अपनी जबान, बेसिकली दैट्स हायर परचेज। हायर परचेज में आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे होते हैं एंड यू गेट द प्रोडक्ट एट द एंड, ठीक है जी, यानी प्रोडक्ट आपके पास ही होता है, बेसिकली यू गेट द ओनरशिप। सो इसका फ़ायदा क्या है कि आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा लार्ज सम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। सो आप छोटा छोटा करके पेमेंट्स कर सकते हैं। हाउएवर एक ड्रॉबैक ये कि इनिशियल डाउन पेमेंट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, तो आपको एक डाउन पेमेंट 5 लाख 10 लाख की ज़रूर करनी होगी, उससे ऊपर जो अमाउंट है वो आप हायर परचेज कर सकते हैं।
इवन सेम गोज फॉर कार, कार के लिए कुछ अमाउंट आपको 40%, 50%, 30% डाउन पेमेंट जरूर करनी है, तो यू नीड टू अरेंज सम सॉर्ट ऑफ लार्ज कैश एज वेल, बट आफ्टर दैट आपकी इंस्टॉलमेंट्स आ जाती हैं. Interest payments can be quite high. Also, this makes the overall cost of the asset much more expensive than if you pay in cash one time. अगर आप पे वन टाइम, अगर आप वन टाइम पेमेंट कर देते हैं वो आपको सस्ता पड़ेगा. येस, यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दैट. अगर आप हायर परचेज करते हैं तो वो एक दो पेमेंट ज़्यादा ही ले जाते हैं आपसे, ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव पड़ेगा. देन कम्स लीजिंग. व्हाट इज लीजिंग? लीज होता है बेसिकली रेंट पे यूज़ करना. गाड़ी की लीजिंग हो सकती है, ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज में ख्याल रखिएगा. जो भी आप फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप उसका रेंट, दैट्स बेसिकली लीजिंग इन दिस केस, ठीक है. एक चीज़ होती है सेल एंड लीज बैक. लेट्स से आई एम अ कंपनी एंड आई नीड फाइनेंस, ऑल्सो आई नीड टू यूज सम एसेट, और मेरे पास कोई चारा नहीं है जी टू जनरेट फाइनेंस. व्हाट विल आई डू? लेट्स से मैं कहता हूँ यार ये व्हीकल मुझे चाहिए, मुझे चाहिए भी, मुझे पैसे भी चाहिए. मैं क्या करूँगा, मैं ये व्हीकल जो है ना, ये मैं सेल करूँगा टू अ लीजिंग कंपनी. लीजिंग कंपनी कौन सी होगी? जो लीज पे एसेट्स दे देती है. मैंने उसको सेल की ये व्हीकल और उससे लीज बैक कर ली. सेल करने से आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अमाउंट उस गाड़ी की, और लीज बैक करने से आई एम जस्ट पेइंग द रेंट ऑफ यूजिंग दैट व्हीकल. यानी बेसिकली यस, ओनरशिप चेंज हो गई, आपने सेल कर दिया एसेट. इससे फायदा क्या हुआ कि आपको एक तो पैसे मिल गए, राइट, लार्ज सम ऑफ मनी विच कैन बी यूज्ड इन सर्टेन प्लेसेस, ठीक है, और साथ ही मैंने लीज बैक कर लिया. इसका मतलब है मैं वो एसेट यूज भी कर रहा हूँ. आई एम जस्ट पेइंग छोटी छोटी अमाउंट्स फॉर यूजिंग दैट एसेट. दिस इज व्हाट सेल एंड लीज बैक इज. So benefit is the firm does not have to find a large cash sum to purchase the asset, and the care and maintenance belongs to the leasing company. However, total cost of leasing charge will be higher than purchasing the asset. So it's better कि at the end, या अगर आप वन टाइम कर सकते हैं तो that's better, वरना इसकी भी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है. Then issue of shares, again we have discussed this. Issue of shares long term होता है, forever available होता है, ठीक है. So permanent source of capital है, repay नहीं करना, interest payments नहीं है, और डिविडेंड्स अगर आपने देने हैं, डायल्यूशन भी हो सकती है, टैक्सेस भी पे करने हैं आपने, एंड डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. डिबेंचर्स अगेन लॉन्ग टर्म है, ऑलरेडी हमने इसको एक्सटर्नल में डिस्कस कर चुके हैं. सो शॉर्ट टर्म में हमने ओवरड्राफ्ट है ये एक्सटर्नली, ठीक है, ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग ऑफ डेट्स. लॉन्ग टर्म में बैंक लोन, हाई परचेज, लीजिंग, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. सो हाउ डू या हाउ डज द बिजनेस डिसाइड कि कौन सा फाइनेंस चाहिए उनको? सो दिस डिपेंड्स ऑन 5 फैक्टर्स. पर्पस एंड टाइम पीरियड, किस पर्पस के लिए पैसे चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए. इफ़ यू नीड मनी फॉर अ मंथ और टू, तो फिर आप कहेंगे यार मुझे शॉर्ट टर्म भी जाना लेना चाहिए, ओवरड्राफ्ट विल बी सूटेबल, या रिटेन अर्निंग विल बी सूटेबल. अमाउंट नीडेड, कम अमाउंट चाहिए तो आप इंटरनली जनरेट कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो फिर आपको एक्सटर्नल सोर्स की तरफ देखना पड़ेगा. इफ़ यू आर अ कंपनी देन मे बी डिबेंचर या मे बी अ बैंक लोन, ठीक है. स्टेटस एंड साइज, कंट्रोल, हाउ मच कंट्रोल यू हैव, एंड रिस्क एंड गेयरिंग. रिस्क एंड गेयरिंग ये होता है, देखो आप दो तरीकों से अपने ऑपरेशन को फाइनेंस कर सकते हैं. कौन कौन से? या तो आप खुद इन्वेस्ट करें विच इज़ नोन एज कैपिटल, या फिर आप बोरोड इन्वेस्टमेंट को यूज़ करें विच इज़ लाइबिलिटी. जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी लाइबिलिटी से जनरेट हुई होगी, लोन से जनरेट हुई होगी, उतनी ज़्यादा रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि यू हैव टू पे दिस दैट बैक, एंड इफ यू आर अनेबल टू पे इट बैक तो फिर मसला है, ठीक है जी. तो अगर हम एक कंपनी की गेयरिंग ज़्यादा है, व्हाट डज दैट मीन? गेयरिंग ज़्यादा होने का मतलब ये कि उसने ज़्यादा फाइनेंस लोन से जनरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर इट कैन नो लॉन्गर फर्दर जनरेट फ्रॉम फाइनेंस फ्रॉम द लोन. यानी बैंक्स कहेंगे या वो सारे उसकी लाइबिलिटी होल्डर्स कहेंगे या लेंडर्स कहेंगे कि यार ऑलरेडी आपकी गेयरिंग बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी रिस्क बहुत ज़्यादा, वी आर नॉट ऑफरिंग यू लोन. तो अगर कम गेयरिंग होगी फिर लोन इज अ वाइबल ऑप्शन. अगर ज़्यादा गेयरिंग होगी तो फिर फर्दर लोन उसको नहीं मिलेंगे, तो फिर यू विल हैव टू शिफ्ट टू अदर मेथड्स. So finance from banks, chances of a bank willing to lend finance, business finance is higher. कब हाई होंगे? बैंक आपको कब फाइनेंस दे सकते हैं? जब आपकी कैश फ्लो फोरकास्ट प्रेजेंट की जाएगी एंड यू विल टेल देम कि दिस इज व्हाई आई नीड फाइनेंस एंड इट्स अ फेवरेबल कैश फ्लो पोजीशन इन द फ्यूचर. तब आपको बैंक कहेगा ऑल राइट दिस सीम्स suitable, so let's give him loan. An income statement from the last trading year and the forecast income statement to see कि कितना profit is this business profitable or not. If you can show them कि yes this business is going to be profitable और इसके past records भी अच्छे हैं, then आपके chances बढ़ जाते हैं to get a loan.
डिटेल्स ऑफ एक्सिस्टिंग लोन्स, आपकी गेयरिंग कितनी है, अगर वो ये देखेंगे कि हाई गेयरिंग है तो फिर दे माइट नॉट गिव यू एविडेंस दैट इज सिक्योरिटी और कोलैटरल इज अवेलेबल। यानी इन केस अगर हम बैंकरप्ट हो जाते हैं या इफ वी फेल टू पे ऑफ द लोन, वी डू हैव सर्टेन एसेट जिसको हम एज अ सिक्योरिटी रखवा सकते हैं। एंड बिजनेस प्लान, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन चैप्टर नंबर 2 आई गेस, और मे बी चैप्टर नंबर 1। बिजनेस प्लान आप प्रेजेंट करेंगे उनको, टेलिंग देम व्हाट योर आइडिया इज, हाउ डू यू गो अबाउट द मार्केटिंग प्लान, और आपने किस किस को कैसे कैसे टारगेट करना है, एंड आपके फाइनेंसेस कहाँ पे लाई करेंगे इन सर्टन फ्यूचर ईयर्स। ठीक है जी। सो अगर इफ यू कैन प्रूव देम या शो देम दीज थिंग्स, तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स। फाइनेंस फ्रॉम शेयर होल्डर्स के चांसेस तब बढ़ते हैं व्हेन द कंपनी शेयर प्राइसेस आर राइजिंग, क्योंकि शेयर प्राइस राइज का मतलब है उसकी शेयर की डिमांड ज़्यादा है। सो ये इंडिकेट करता है कि येस दे विल ऑल्सो गेट गुड डिविडेंड्स, और इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है। जब आपके डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट हाई होंगे कि शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड हैं दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट में। एक तो वो ये सोचते हैं कि यार लेट्स बाय द शेयर्स नाउ, जब इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो विल सेल देम लेटर एंड अर्न अ प्रॉफिट। इसको कहते हैं कैपिटल गेन। एक तरह का शेयर होल्डर ऐसा होता है जो प्राइसेस में इंटरेस्टेड होता है। दूसरा तरह का होता है जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स में इंटरेस्टेड होता है। यानी इफ आई इन्वेस्ट इन द बिजनेस तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि शेयर प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाए बहुत, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यार ये मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना देता है। ठीक है, तो मैं अगर इफ आई एम दैट टाइप ऑफ एन इन्वेस्टर तो फिर मैं ये देखूंगा डिविडेंड्स हाई हैं कि नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं या नहीं है। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट्स भी हाई है, डिविडेंड रेट भी हाई है, तो फिर आई गेट मोर प्रॉफिट एंड कंपनी हैज अ गुड रेपुटेशन एंड फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स। ठीक है, सो दैट वाज इट, टॉपिक 1 ऑफ यूनिट 5, जिसमें आपको सोर्सेज का बताया, इंटरनल एक्सटर्नल एंड लॉन्जेविटी में भी हमने बात की, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसके बाद हमने ये देखा कि बैंक्स आपको कब लोन दे सकते हैं एंड इन शेयर होल्डर्स के चांसेस कब होते हैं इन्वेस्ट करने के। सो टुमारो विल कंटिन्यू विद टॉपिक नंबर 2। So stay tuned guys and do watch the recorded lectures. Till then, take care. Allah Hafiz.